Okay. Now let's learn about data frames. What are data frames? Okay. And similarly, like we did in vectors, we will create data frames, we will modify them, we will access elements from them. The same exercise we will be repeating here. So, creating data frames. Let me go back to the Excel and let's see what is data frame. Okay. जैसे हमारी एक्सेल शीट में डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट रोज होते हैं, है ना? अभी जैसे हमने वेक्टर्स किया, ठीक है? अगर हम उन वेक्टर्स को कंबाइन कर दें, डेटा फ्रेम होते हैं बेसिकली 2D स्ट्रक्चर्स, ठीक है? जिसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। हम सेपरेट वेक्टर्स को अगर कंबाइन कर दें, so that becomes our data frame. Let me show you. अभी हमारे अलग अलग वेक्टर्स थे, मार्क्स, नेम्स एंड पास, ठीक है? Let me combine. Now, together it is data frame, ठीक है? अब डिफरेंस होता है जब हम मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिसेस, वो अभी हम आगे करेंगे, बट लेट मी टेल यू अ वेरी ब्रीफ, यू नो गिव यू अ ब्रीफ डिफरेंस अबाउट मैट्रिक्स एंड डेटा फ्रेम. दे लुक लाइक सेम, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट दीज आर एट्रीब्यूट्स, सॉरी, डेटा फ्रेम में मैं क्या बता रही थी, मैट्रिक्स, हाँ। मैट्रिक्स में जो है, हम यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मार्क्स में हमने नंबर्स दिए, इसमें हमने कैरेक्टर्स दिए, इसमें हमने लॉजिकल बुलियंस दिए, बट इन मैट्रिक्स व्हाट हैपेंस, हमें सारा का सारा डेटा जो है वो एक ही तरह का भरना होता है. इफ इट इज नंबर्स, throughout it will be numbers. If it is characters, throughout it will be character. Generally we do it mathematically, we put numbers only, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है. So each column, marks, names, pass, each column can be of different type here: number, text, logical, ठीक है? And each row represents an observation, ठीक है? Like if I write, this is an observation of student 1. Her मैम name, स्क्रीन पॉज sorry, मैम स्क्रीन पॉज है। are you able to see it now? Hmm? Is it visible now? Screen? Okay. For example, this is marks, this is names, this is path. Every column gives us different types, different type. Like this is numeric type, this is uh, character type, this is logical type, and each row represents an observation. For example, if I write student 1 here, student 1 is Neha, her marks are 45 and she did not pass. Student 2, this is an observation. So what are rows giving to me? Observation. Student 2 is Sneha, whose marks are 66 and she passed the exam. So similarly, student 3. So every row is giving us an observation, every column giving us some attribute. Okay. Now, let us see how do we create it in RStudio. Do you understand what is data frame? 2D structure. Okay. Rows and columns. So how do we create data frames? Let us learn step by step. I am first I am writing names. Okay. हमारे names जो हैं, if you remember, names हम हमेशा
इन्वर्टेड कॉमर्स में देते हैं, राइट? नेम्स बोलो। रवि। You always have to put the inverted commas first. Mansi. Let me give my name to it. Kanika. Okay. So these are, I have created first vector. I told you it is a collection of vectors. So I have made one vector which is a character one. Text put किया उसमें. Now I am putting age. Okay. Now age doesn't require inverted commas. यहाँ पे हम simply numbers भी लिख सकते हैं 20, 21 and 30 for example. ऐसा कर लेते हैं 22. Then I am writing या क्वेश्चनर के आंसर्स या पास कुछ भी लिख देते हैं. ठीक है. थर्ड वेक्टर आई एम मेकिंग. आई टोल्ड यू इट शुड बी इन कैपिटल. ट्रू. देखो कलर अपने आप चेंज हो जाएगा. डोंट राइट इट ऑन द स्क्रीन प्लीज if it is getting by mistake. True, false, true. I have created 3 vectors. You have to make sure that all the vectors must be of same length. I will let me show you in Excel. देखो इनका लेंथ सेम होना चाहिए. अगर 3 एंट्रीज है तो 3 ही होनी चाहिए सब में. ठीक है. Each column is a vector and all the vectors should have same length. Within the vector, same type should be there and this collection of vectors is data frame. So पहले हमने क्या किया, 3 vectors बनाए. अब now I am creating data frame. How will I create data frame? मैं अपने data frame को कुछ नाम देती हूँ पहले. ठीक है. Let's say I am giving name as students. मेरे डेटा फ्रेम का नाम है स्टूडेंट्स विच आई एम गिविंग इट. ठीक है. स्टूडेंट इज इक्वल टू ओके डेटा फ्रेम. कैन यू सी हियर डेटा फ्रेम. अब ये क्रिएट कैसे होता है? डेटा फ्रेम को मैं बोल रही हूँ मेरा डेटा फ्रेम स्टूडेंट्स इज द नेम विच आई हैव गिवन. डेटा फ्रेम आई एम क्रिएटिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर पूरे उसको टेबल को नाम दे दिया स्टूडेंट्स. सो दिस इज माय डेटा फ्रेम हेडिंग स्टूडेंट्स और उसके अंदर सेपरेट वेक्टर्स हैं. ओके. नाउ डेटा फ्रेम में क्या क्या आएगा? लेट मी पुट दिस नेम्स, एज एंड बस. ठीक है. So I have created my data frame. I will run this command. Object age is not found. कहीं हमने age यूज किया था पहले? हमने पहले वाले उसमें age यूज किया था क्या? एक मिनट. Let me change the ऐसे ही आता है ये. But let me change the names of
कॉलम्स ऑल्सो। ठीक है, ये नेम्स लिखा था, आई वॉन्ट इट टू बी नेम। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू नेम्स। तो ये जो नेम्स है, यहाँ जो नेम्स है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल एन से नेम, या नेम्स कर देती हूँ। ठीक है, देन आई वॉन्ट, अच्छा एज था इसलिए नहीं आ रहा होगा, हमने इसको रन नहीं किया। I have to run this command. I have to run this command. I have to run this command. Let me create it again. Okay, what is the mistake I am doing here is मैंने combine नहीं दिया, है ना? So तभी सब में error दिखा रहा है. So let me run this command, then another command, then another command. Now let me make the data frame. So I am giving a name to my data frame or my डेटा जो मैंने अभी एक्सेल में आपको दिखाया था, उस टेबल का नाम मैं दे रही हूँ स्टूडेंट्स। आई विल क्रिएट डेटा फ्रेम। ठीक है, सो देर आर टू वेज। अगर मुझे यही नाम रखने हैं तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी, नेम्स एज और पास। अगर मुझे इसको नाम को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ, ए बी सी कर सकती हूँ। या चेंज कैसे करते हैं, देखो, नेम, मैं फर्स्ट वाले कॉलम को मैंने गलती से स्मॉल एन लिख दिया था, सो आई एम राइटिंग इट एज नेम्स इक्वल्स नेम्स। देन I am giving it as capital A, age is equals to age. Then P also I'm making it capital, P is equals to pass is equals to pass. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस, अगर मैं सिर्फ ये लिखती तो भी ठीक है, तो भी ऐसा ही बन जाता, बट मैंने नेम्स को कैपिटल एन वाले नेम से रिप्लेस कर दिया। दिस एज हैज बीन रिप्लेस्ड विद कैपिटल ए एज, एंड दिस पास हैज बीन रिप्लेस्ड विद कैपिटल पास पी। ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग इट। ना, अभी कैसे दिखाएगा ये, हमें प्रिंट करना होगा। प्रिंट मतलब कि वो डेटा फ्रेम दिखाए, या मैं सिर्फ स्टूडेंट्स भी लिख सकती हूँ, या मैं प्रिंट स्टूडेंट्स भी लिख सकती हूँ। सो आई एम राइटिंग कि प्रिंट, प्रिंट मतलब व्यू, आई हैव टू सी कैसा बना है। ओनली स्टूडेंट्स लिखूंगी तो भी चलेगा। कैन यू सी? नेम्स में अब देखो, ये कैपिटल एन हो गया, ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल पी हो गया, राइट? सो मैंने जो वेक्टर्स बनाए थे, आपको दिख रहे हैं? कैन यू सी दिस आउटपुट? रवि एज 20, रिजल्ट पास मतलब ट्रू। मानसी 21, रिजल्ट फेल। ओके, अब ऐसा कोई, ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द दिस डेटा फ्रेम नाउ, जैसे हमने वेक्टर का किया था। हाउ कैन आई एक्सप्लोर इट? इफ आई गिव अ हेड कमांड, हेड कमांड से क्या होता है? किसको देनी है हेड कमांड? क्या है मेरा डेटा फ्रेम? स्टूडेंट्स। क्या होगा? एनीबडी रिमेम्बर्स हेड से क्या होता है? इट शोज फर्स्ट फ्यू एंट्रीज। इसमें है ही तीन, तो फर्स्ट थ्री तो दिखाता ही है। ठीक है, देन इफ आई एम डूइंग एस टी आर क्या होता है? वी डिड इट यस्टरडे। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि नेम्स जो है वो कैरेक्टर है, वो ये तीन नेम है, रवि मानसी कनिका। एज इज नंबर, 2020, pass is logic. So structure, str is giving me the structure. If I say summary,
summary में it will give me the summary of my data frame. summary में mean, median, maximum, minimum. देखो summary दे दी इसने. नेम्स एज, नेम्स में 3 लेंथ 3 है, क्लास कैरेक्टर है, मोड कैरेक्टर है. एज का ये दे दिया, मिनिमम वैल्यूज 20, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, पास का स्ट्रक्चर दे दिया, समरी दे दी. सो इट हैज गिवन समरी से हमारी समरी आ जाती है. इफ आई वांट टू सी रोज, नंबर ऑफ रोज, एन रो, एन रो मीन्स नंबर ऑफ रोज. ओके, क्या दे दिया? 3 rows है हमारे पास. Similarly, if I have to see number of columns, it will give me number of columns. Columns भी 3 है. Number of columns, it is showing 3. Now, does anybody remembers हमें class से क्या मिलता है? What do we get from class? When we did it in vectors, class हमें बताता था type of vector. इसमें देखते हैं क्या देता है. तो मैं ओनली एंटर प्रेस कर देती हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. इट सेज टाइप ऑफ, ये टाइप क्या है? क्लास मीन्स टाइप. स्टूडेंट्स क्या है, वो कह रहा है कि ये डेटा फ्रेम है. क्लियर? सो वी कैन परफॉर्म दीज फंक्शंस. ओके, लेट अस ट्राई accessing elements. Yes, Anubhav, you can speak. Accessing elements. ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं एक्सेस? इफ यू रिमेंबर, फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स वी वर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, सो आई वांट टू एक्सेस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स में स्क्वायर ब्रैकेट में. अच्छा, वहां पे तो सिंगल होता था, यहाँ पे तो रो और कॉलम दो हैं, तो हमें दो लिखने पड़ेंगे. फर्स्ट अल्फाबेट और लेटर डिनोट्स रोज एंड द सेकंड डिनोट्स कॉलम्स. ठीक है, यहाँ पे मुझे रो का लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कॉलम का लिखना पड़ेगा. आई एम इरेजिंग इट, आई एम डिलीटिंग इट. आई हैव टू राइट कि मैं क्या देखना चाहती हूँ. मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट रो क्या था. ठीक है, इफ आई वांट टू सी फर्स्ट रो. हम्म, if I want to see in my data frame my first row, so second element, second part, I have to leave it blank. Okay, तो ये मुझे फर्स्ट रो दिखा रहा है सिर्फ. फर्स्ट रो क्या है? रवि, एज इज 20 and result is pass. True. If I want only second column to be displayed, क्या करूंगी मैं? स्टूडेंट्स. मैम यस. मैम थोड़ा डॉक्टर को दिखाने जाना था मैम, नंबर लगाए हैं मैम. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव. मैम स्टूडेंट, अटेंडेंस लगेगी. हाँ हाँ, स्टूडेंट्स. If I want to see only the second row, sorry, only column, not the row. So I will leave the first part blank and column देखना है तो second, उसमें हम column लिखते हैं. I want to see the second column. Let me run it. Second column हमारा जो था उसमें age थी, और वो age थी 20, 21, 22, है ना? अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू इन द, लाइक आई वांट कनिका की या मानसी की एज. ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल राइट
students, square bracket, ठीक है. It was second row and I want to see particular age. Mansi was in second row. So for specific value, if I want to see, it says second row का age वाले कॉलम में आंसर जो है वो 21 है. Now, one very important thing which we will be using in our big data sets quite often is how to access the entire column of that data frame. If you remember, we did it in the last session also by using $sign. Students, जैसे मैं $साइन दिखाऊंगी वो मुझे पूरे टेबल के सारे कॉलम्स दे देगा. देखो, स्टूडेंट्स में कौन कौन से कॉलम है? नेम्स. स्टूडेंट क्या था हमारा? हेडिंग था. देखो, हेडिंग था ना इस टेबल का. स्टूडेंट्स के सारे कॉलम्स दे देगा वो हमें. ठीक है. सो एज सून एज आई पुट, यस बेटा, आपको पता है मैं okay, so if I want to access the entire column, so I just have to all the columns in this student, I just have to press this dollar and it will show me all. If I want name, I will click on it. I want age, I want pass. So if I want names, it will give me the entire column at one go. Okay. So this was about accessing. How can we access the elements in the data frame? Okay. Now, coming to the next part, which is now we will be learning about modifications. ठीक है. डेटा फ्रेम में मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं? पहला, सबसे पहले देखते हैं A part. I hope you know when I am putting these hash signs, this is just a comment. R does not execute this function. ठीक है. First हम देखते हैं adding a new column. हमारे पास अभी 3 columns थे. Let's add new column. Okay. Now I want to add new column. किसमें? Students data frame में. $, I will put because मेरे को पूरा वो डालना है. एक और कॉलम मैं डालना चाहती हूँ and I want to name it as grades. ठीक है. Now this will be equal to, मैंने क्या बोला? स्टूडेंट्स में ग्रेड कॉलम. ठीक है. I want to add, this should be equal to, for example, अच्छा, ग्रेड्स जो होते हैं वो टेक्स्ट होता है तो हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना है. ए, फर्स्ट का ए डालना है मुझे, सेकंड का मुझे A+ डालना है और थर्ड का मुझे B ग्रेड डालना है. ठीक है. ना, लेट्स रन दिस कमांड. स्टूडेंट्स ग्रेड. Okay, the mistake again is I have not combined these. Now let me run. Whenever there is more than one value, we always have to give command C, small c. Okay, so this is how we can add another column. Let me see whether it has been added or not. I will write print, either print students or only students. क्योंकि मेरे उसका नाम क्या है डेटा फ्रेम का? Can you see now there are 4 columns? Grade has been added additionally. Okay, let's see second part. Adding a new row.
How I'm going to add a new row? I will write, I can write new row, new student. There were 3 students. I want to add one more student. I'm just writing new student. Okay. अच्छा, ये underscore जो होता है इसमें, this has no, this is not an operator. It is just a way of writing in R कि हम इसको, अगर मैं ऐसे लिखती तो समझ नहीं आता, ऐसे हम जनरली लिखते नहीं है स्पेस, सो वी जनरली गिव अंडरस्कोर. न्यू स्टूडेंट. ओके, न्यू स्टूडेंट मेरे को एक ऐड करनी है रो. किस में करनी है? डेटा फ्रेम में. ठीक है, अब उसकी मुझे डिटेल्स देनी पड़ेंगी. क्या क्या? एक तो फर्स्ट नेम्स था. नेम में क्या देना चाहती हूँ? आई वॉन्ट टू गिव इट अ नेम तन्वी. देखो, टेक्स्ट लिख रही हूँ तो मुझे उसमें लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स में. देन सेकेंड कॉलम क्या था? एज. एज आई वॉन्ट टू से, एज ऐसे ही लिख सकते हैं. आई वॉन्ट टू से इज 23. ओके, देन एज के बाद क्या था? पास. वेदर शी इज पास और नॉट, तो मैं इसका दे रही हूँ ट्रू. आई एम जस्ट सीइंग द आउटपुट फ्रॉम हेयर ओनली. जो मेरे टेबल में है मुझे चारों देने पड़ेंगे. ट्रू, कैपिटल. ठीक है, और लास्ट क्या है? ग्रेड. ग्रेड्स में आई वांट टू गिव इन्वर्टेड कॉमर्स ए. ठीक है, सो व्हाट आई डिड, मैंने न्यू स्टूडेंट लिखा. मैं न्यू रो भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी. न्यू स्टूडेंट मेरे को डालना है अपने डेटा फ्रेम में, जिसका जिसके मुझे सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी. ठीक है. अच्छा, कॉलम में डिटेल हमें देनी थी. कॉलम का नाम हमने दे दिया था ग्रेड्स. ठीक है, और कॉलम की डिटेल्स दे दी थी. अब इसमें न्यू स्टूडेंट हमारा न्यू रो है, और उसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि किस कॉलम में क्या क्या आए. लेट मी रन दिस. ठीक है, अब ये इसने ऐड कर दी रो. ठीक है, बट इसमें हमारा फंक्शन जो होता है वो होता है आर बाइंड, कि हमें रो को बाइंड कर दो, इसको इस वाली डेटा फ्रेम को उस वाले डेटा फ्रेम में कंबाइन कर दो. सो वी से आर बाइंड. आर बाइंड इज द कमांड. स्टूडेंट, स्टूडेंट्स वाले डेटा फ्रेम में आर बाइंड कमांड आई एम गिविंग. ठीक है, देखो लिखा है कंबाइन आर ऑब्जेक्ट्स बाय रोज और कॉलम्स. अब किस किस को करना है आर बाइंड? पहले वाला स्टूडेंट्स डेटा फ्रेम और न्यू वाला स्टूडेंट्स डेटा फ्रेम. सो आई एम राइटिंग बाइंड किसको करना है? स्टूडेंट्स को, कॉमा, जो मैंने न्यू डेटा फ्रेम बनाया अभी, न्यू स्टूडेंट वाला, इन दोनों को कंबाइन कर देना. Now I'm running this. Now it has combined. Okay, let me see the result. Print results, print students only. Can you see? Now it is giving me added row also. Okay, so this is it in data frames. You all have to practice this. You can create a data frame. Okay, I am giving you one exercise for this. ठीक है, इसमें आप क्रिएट करो. क्रिएट अ डेटा फ्रेम, है ना, ऑफ, यू कैन से एनी 3 कैटेगरीज: प्रोडक्ट, प्राइस एंड इन स्टॉक. इन स्टॉक मीन्स ट्रू आएगा if it is available, false आएगा if it is not available. Then
add a new product to the list. That means adding a row. Then you can, I'll just put the hash functions below them. Third thing you can do, add a new column, discount. I will see this exercise. Okay. Then fourth column, you can do, okay, you have to access, हमने access से क्या था? Second product name and you can access one more thing, price of first product. So this is your today's assignment. You have to do this exercise. हमने किया क्या क्या है इसमें? Let us quickly go through the summary. Summary में हमने किया है, we learned create data frame, है ना? Data frame कैसे किया था? नाम देके equals to data dot frame और आगे उसके नाम. Then how do we see the data frame? We write print. View के लिए क्या करते हैं हम? View full data frame. We do print data frame का नाम. Then we viewed specific columns, है ना? Then we did access किया था, access by row or column position. What else we did? We added a row, add column, and row. और हमने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स करी थी, ऑपरेशंस लगाए थे, समरी करी थी, राइट? So these are the things which we did. Okay, one thing I forgot, adding a row, adding a column. Third thing also we can do, just 2 minutes I will take. Third thing is, we can change any particular value also. Change a value. Change कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वाले ही उसमें हमारा, आई वॉन्ट टू चेंज सेकेंड रो और उसमें पास्ट कॉलम में मुझे करना है, क्या था उसमें? सेकेंड रो में पास्ट कॉलम में फॉल्स था. आई वॉन्ट टू, अब वो वैसे वो पास हो गया बच्चा, ठीक है. आई वॉन्ट टू से उसको ट्रू कर दो. So this is the way we can change also. Run this command and again I want to see the results. So I will write print students. देखो, सॉरी मैंने ना पास्ड कर दिया था, वो पास होना चाहिए था. The name was pass, not passed. Now it is taking passed only because I have created. Anyways, this is the way we can change. ये देखो चेंज भी कर दिया इसने, ट्रू कर दिया फॉल्स की जगह, ठीक है. नाउ बट इट हैज एडेड वन मोर कॉलम,
but we know how to add and remove columns, so we can do this thing. So this is about data frame. In next session, we will be doing matrices. Okay.